Hi, good evening. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body.
I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I
even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind.
Hello, everyone. Good evening, and I welcome everyone to join the session. First of all, I'm very, very grateful to all the people who are joining the session and want to know more about Ho'oponopono, because in this course we will confirm every detail, every single tips of Ho'oponopono that we use in our daily life. So, without wasting any time, let's go to the कोर्स। और बट इससे पहले हम लोग एक बार अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर आप लोग ओके हो तो यू कैन गाइस रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। तो थोड़ा सा एक सेल्फ इंट्रो हो जाए, क्योंकि इसमें मेरे को बेसिक ये समझना है पहले कि आप लोग हो ओपोनोपोनो को कहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लाइक आप किस पर्पज से हो ओपोनोपोनो परफॉर्म करना चाह रहे हो। सो एनीवन? Jyoti di, I want to do Ho'oponopono for my parents. सॉरी? पेरेंट्स के लिए करना है। पेरेंट्स के लिए करना है? और क्या रीजन है, हाँ, लाइक मतलब किस पर्पज से आप करना चाह रहे हो पेरेंट्स के लिए? मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जिसके कारण मतलब मेरा रिलेशनशिप मम्मी पापा के साथ इतना सही नहीं है। अभी भी मैं वही कर रही थी। ओके। जस्ट मैसेज देखा तो मुझे पेरेंट्स के लिए ही करना है, लाइक टेयर्स ऑफ जॉय वाला एक्सपीरियंस नहीं है क्या कि इफ आई हैव एवर हर्ट माय पेरेंट्स, आई जस्ट वांट टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी ओके। between me and them. ओके। I just ओके। want to गॉट clear it इट। out. Yeah. गॉट इट। ज्योति, आप कुछ शेयर करना चाहोगे, लाइक आप किस पर्पज से हो अपना अपना परफॉर्म कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो? यस, मतलब इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि हम काफी लिमिटेड से लोग हैं यहाँ पे, और जितना हम एक दूसरे से डिटेल में बात करेंगे हम अपने पॉइंट्स को उतनी ही अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे सारी चीजों में। तो इफ यू आर ओके, मेरे को लग रहा है आप बाहर कहीं पे चल रहे हो या लाइक वॉक कर रहे हो। Hi, Sudarshana. हाय ज्योति, हाय। Jyoti off. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउस यू? Great, I'm good. Yeah. So basically, I was doing Ho'oponopono already for my visa for the Dubai job. However, everything was going pretty well, but there is Mm-hmm. something which is again come in, and the process is stopped. So basically, I would want to do it again for the same reason. So you are applying for work permit? That's right. Okay, okay. Thank And you. Surbi, you wanna share something? सभी एक तो पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इंटरेक्शन फेस टू फेस रहे हम लोगों का तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। दैट इज ओके अगर आप लोग कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, या क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डे, इसमें हम अभी खाली हो ओपोनोपोनो के बारे में जानेंगे कि हो ओपोनोपोनो है क्या चीज है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि ये मैनिफेस्टेशन में यूज की जा रही है टेक्निक। हालांकि ये मैनिफेस्टेशन का टेक्निक नहीं है, ये क्लिंजिंग का टेक्निक है, लिबरेशन का टेक्निक है। तो इसी चीज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए और समझने के लिए कि हम अपनी क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को एक अच्छे डायरेक्शन में डाल सकते हैं, ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो कमलजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके। हाय कमलजीत। मैम हाय। मैंने हाय। आपको लिख के दिया है, अभी मैसेज किया है। एक्चुअली ओके। हस्बैंड के लिए करना चाहती थी। ओके। और रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आ रहे हैं इन दिनों में। ओके। ब्रदर सिस्टर का भी थोड़ा रिलेशनशिप इशू आ रहा है, और मेरे फर्स्ट हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि ओके। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इन दिनों में। वो ना बिजनेस ग्रोथ की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस कस्टमर्स नहीं आ रहे, बिजनेस एकदम लो जा रहा है इस टाइम पे। ओके। सिंस 1 ईयर तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी 2 मंथ से तो बहुत ज्यादा लो हो गए, इसलिए वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। और घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत इफेक्ट करता है इसको लेकर। ओके। गॉट इट। ज्योति रावत। ज्योति, आर यू हियर? I think there are few comments which they have already shared on ओके। chat. लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, नो इशू। सो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हो'oponopono के बारे में। तो इसमें कुछ एक्चुअली टिप्स होते हैं हो'oponopono जब भी हम परफॉर्म करते हैं हमारी लाइफ में। तो इसका एक लाइक पैटर्न होता है कि जिसे हमें फॉलो करना होता है। हम
किसी भी थॉट में, किसी भी इमोशन में डायरेक्टली हो ओपोनोपोनो अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ए रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, और उस केस में क्या होगा, हमारे फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, हमारे जो भी हम अगर रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाह रहे हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, कि बिकॉज हमें लगेगा कि सामने वाला हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम हो अपन अपन परफॉर्म करते हैं तो हम अपने अंदर के जो भी थॉट्स हैं उनको क्लीन करते हैं, ना कि हम सिचुएशन को क्लीन करने की या हील करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आउटर सिचुएशन कभी भी पर्सन के हाथ में नहीं है, किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में हमेशा उसका इनर वर्ल्ड कैसा है, सिर्फ उसी चीज को वो कंट्रोल कर सकता है। अगर आप आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगी, क्योंकि वो सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं। सेकंड, जब भी हम किसी सिचुएशन के लिए एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस डालते हैं कि हमारा ये चीज नहीं हो रही है, तो वो हम ऑलरेडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही डिनाई कर रहे हैं कि हमारे इस इंसान के साथ या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो फर्स्ट थिंग, ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी अपने माइंड में। कोर्स में हम ये सारी चीजें एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले आप एक बार स्क्रीन, आपको दिख रहा है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो इसमें कुछ एक टिप्स लिखे हैं, इन सभी टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारे ही टिप्स हो अपोनो में अप्लाई होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हो अपोनो क्या है और इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए। टू प्रैक्टिस हो अपोनो यू मस्ट नो द टेक्निक वेरी वेल एंड अंडरस्टैंड ऑल द प्रीमिसेस वन बाय वन। हो अपोनो इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, above all it is a cleansing and liberation technique। ठीक है, समझ में आया? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको मैनिफेस्टेशन में यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। एवरीवन इज यूजिंग फॉर मैनिफेस्टेशन टू हील देयर रिलेशनशिप, टू हील द फाइनेंशियल सिचुएशन, राइट? तो ये चीजें उस चीज का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस होता है एक क्लीनिंग करने का। क्लीनिंग किस चीज की? हमारे अंदर के थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर। ओके, ये सारी चीजें हील करने के लिए हो अपोनो यूज किया जाता है। और सेकंड ये है लिबरेशन का टेक्निक। लिबरेशन मीन मोक्ष, यानी मुक्ति का। बिकॉज ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस क्या है? सबसे बड़ा हायर पर्पस क्या है? ही वांट टू गेट फ्री फ्रॉम एवरीवन। कोई भी इंसान कार्मिक कनेक्शंस में, कार्मिक कनेक्शंस देखो हम कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि वो कार्मिक कनेक्शन एकदम से खत्म हो जाए, बट वो चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि कार्मिक का, कर्म का जो आपका सर्कल है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अगर हमारी अभी ब्रीथ स्टॉप भी हो जाए तब भी वो सर्कल जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्शंस लिए हैं, हमें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलने हैं, उससे सेपरेट रिजल्ट नहीं मिलने हैं। कर्म हम चार प्रकार से कर रहे हैं, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी जरूरतों के द्वारा। ठीक है, ये चार तरीकों से हम कर्म परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड, इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि हम बॉडी लेवल पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे हार्ट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे एनर्जी लेवल पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी सराउंडिंग की जो भी एक्टिविटीज हैं या आपकी लाइफ की जो भी एक्टिविटीज है उन सभी को अफेक्ट करेगा। तो सभी पहले कॉन्शियस हो जाएं कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी एक्टिविटी करो वो आप सोच समझ के करो, कोई उसमें नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशन पुट ना करें, राइट? और ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है हमारे पास की मेमोरीज को। और ये मेमोरीज ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में हम अवेयर भी हो सकते हैं और हम अवेयर नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज हों जो डीप इनसाइड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, और उन्हीं को हम बार बार अनकॉन्शियसली वो रिपीट हो रही हैं और हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हो अपोनो की वजह से क्या होगा, वो आपकी जो मेमोरीज हैं वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें हमें जब भी हम हो अपोनो परफॉर्म करें, आपके माइंड में अगर कोई विचार आ रहा है या कोई आपका इमोशन नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। किसी बीमारी के बारे में भी हो सकता है, अगर कोई बीमार है तो लाइक वो उस चीज को बार बार मैनिफेस्ट कर सकता है कि मैं बीमार हूं, वो 10 लोगों के साथ शेयर करेगा, 10 लोग आगे 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वो क्या होगा, अनकॉन्शियसली उसने क्या किया, वो बिलीफ सिस्टम यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्ग बेस पे उसने रख दिया कि हाँ, उसने एनर्जी ले ली 20 लोगों की और बता के अपनी इलनेस के बारे में। या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, जितना आप शेयर करोगे किसी के साथ क्या होगा, वो उतना ही कॉन्फ्लिक्ट आप, सामने वाला अब आपको पॉजिटिव एनर्जी दे ये कंपलसरी नहीं होता है, सामने वाला आपको
होता क्या, विक्टिम प्ले करना एक ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा पॉइंट है कि नहीं मेरा ये चीज नहीं हो रहा है, या मेरे को सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या किसी भी सिचुएशन में हम विक्टिम प्ले करना मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि हमें कोई समझ रहा है। ठीक है, तो हमें विक्टिम रोल नहीं प्ले करना है किसी भी चीज में। हमें कौन सा रोल प्ले करना है कि मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ या अपनी सिचुएशंस के साथ हील हो सकता हूँ, और ये सारी पावर किसके हाथ में है? मेरे पावर मेरे हाथ में है। राइट। आपको क्या करना है जब भी आप हो अपोनो करें, आपको सिर्फ अटेंशन पे करनी है अपने प्रेजेंट मोमेंट पे। प्रेजेंट मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो? कुछ शब्द बोल रहे हो, कुछ क्रिया कर रहे हो, राइट, बट दिमाग में चल रहा है किसी फ्रेंड के बारे में, किसी इमोशन के बारे में, है ना, या फैमिली फंक्शन के बारे में, या अपने जॉब के बारे में, या कोलिग्स के बारे में, या कोवर्कर्स के बारे में। किसी के बारे में पॉजिटिव चल रहा होगा, किसी के माइंड में नेगेटिव चल रहा होगा। बट हमें क्या करना है जब आप हो अपोन अपोनो परफॉर्म करते हो, आपको अपने एक एक वर्ड पे कॉन्शियसली होके अवेयर होना है। और जो हमारे मैजिकल वर्ड्स हैं हो पोनो के, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको ये कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है। ये सिंपल एक मेथड है। क्या करेगा हो ओपोनोपोनो? क्लीन करेगा और लिबरेशन में हमें हेल्प करेगा। क्या क्लीन करेगा? पास्ट की मेमोरीज को क्लीन करेगा, क्योंकि हम एक लाइक शेडो हैं पूरा अपने पास के बिलीफ का, आपके पास के एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो हमें उस चीज सिस्टम को हील करना है, ताकि हमारी जो मैनिफेस्टेशन हम करना चाह रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम यूज करना चाह रहे हैं, उसे हम सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ यूज कर सकें। द नेक्स्ट इज होअपोनोपोनो इज अ ट्रेडिशनल हवाईन प्रैक्टिस। ये एक हवाईन प्रैक्टिस है। किस चीज के लिए? फॉरगिवनेस के लिए। और जो मॉडर्न वर्जन है इसका, वो हमें सिखाया है डॉक्टर ह्यूलन ने, जिनके बारे में सभी ने सुना होगा कि उन्होंने 1 ईयर के अंदर पूरा मेंटल हॉस्पिटल को क्योर कर दिया था, और वो शट डाउन हो गया था उसी टाइम पे। तो उन्होंने इस चीज को किस लिए दिखाया? ताकि हम सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाए, हम खुद को जान पाए कि हम कौन हैं, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद को लेके क्या है, और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो क्लीनिंग है उसको हम कॉन्शियसली कर पाए। लाइक हम अवेयर हो पाए कि हमारे माइंड में कोई विचार या हमारा कोई इमोशन या हमारे लाइफ में बार बार सेम पैटर्न में कोई सिचुएशन क्यों हो रही है, उस चीज को अंडरस्टैंड करके हम हील कर पाए। And the core idea is this: you are 100% responsible that appears in your life. आपकी लाइफ में लाइक जैसे शुभी ने कहा पेरेंट्स के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कमलजीत ने कहा कि हस्बैंड का चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो क्या हो सकता है? वो अट्रैक्शन है। जो भी कुछ अपियर हो रहा है वो हम ही लोगों ने अट्रैक्ट किया है। कैसे अट्रैक्ट किया है? क्योंकि छोटे छोटे एक्सपीरियंस रहे हैं। वो एक्सपीरियंस क्या हो गए? एक बिलीफ में कन्वर्ट हो गए, और बिलीफ में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ? वो हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया। लाइक ठीक है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमने पैटर्न को कैसे इसको शट डाउन करना है। तो ये सारी चीजें हमें गाइड करेंगे कि हमें कैसे पैटर्न्स को समझना है, कैसे उसे शट डाउन करना है, और कैसे खुद को हील करना है। द नेक्स्ट इज, हाँ, सेकंड चीज, ये कोई ब्लेमिंग गेम नहीं है। ना ही आपने खुद पे ब्लेम लेना है, ना ही हमने किसी और के ऊपर ब्लेम करना है किसी भी सिचुएशन को लेके। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो लाइफ में, तो उसका एक ही पर्पस है कि आपको कनेक्ट करवाया जाए आपकी हायर सेल्फ के साथ। हर इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ है, हर इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम है। वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग समझता है। ठीक है, तो हर इंसान के लिए वो इम्पोर्टेंट पर्सन है पूरी दुनिया में। चाहे उसके सामने पीएम खड़े होंगे, बट स्टिल ही इज इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्लियर करना है, खुद को क्लीन करना है, हमारे एक्सपीरियंसेस को क्लीन करना है वो अपोनो की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सरसाइज हो अपोनो इन 4 इजी स्टेप्स। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वी क्रिएट कार्मिक कनेक्शन बाय थॉट्स, बाय वर्ड्स, बाय एक्शन, बाय डीड्स। हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो भी विचार हम अपने अंदर रख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमारे कार्मिक कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं। चाहे वो हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी और पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल में यूज कर रहे हैं, चाहे अपने स्टडी एरिया में कर रहे हैं, चाहे एबीसीडी किसी भी एरिया में आप इसको यूज कर रहे हो, तो वो चीज क्या कर रही है? वो आपका एक कार्मिक सर्कल क्रिएट कर रही है। राइट। अब देखो, इफ वी बिलीव दैट हु वी आर टुडे इज शेप्ड बाय एवरीथिंग वी हैव थॉट,
felt, said, and done in the past, then it makes sense that our life right now is influenced by our memories and the past experience, even the one we don't always think about. हो सकता है अगर हम ये विश्वास करें कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ चल रही है ना अभी, वो किसका रिजल्ट है, वो हमारे पास्ट में जितने भी हमने एक्शंस लिए, जो भी हमने फीलिंग्स रखी, जो भी हमने विचार रखे, उन सभी का शेडो बन गया है। अब हमारा बिलीफ सिस्टम किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हम सोचते आए हैं, जैसे हम बात करते आए हैं, जैसे हम एटमोसफेयर में रहते आए हैं, तो क्या हुआ, उसने एक इंडिविजुअल पर्सन को एक स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है। और ये मेमोरीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हो सकते हैं या उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, या 20 साल पहले जो आपको लगता, आप कंसीडर करते थे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड है, क्या सभी लोग आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं अभी? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। तो बट हुआ क्या है, वो मेमोरी स्टोर है माइंड के पास। ठीक है। माइंड उसको फंक्शन कर रहा है उस चीज में, बट हम उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट हमारा बिलीफ सिस्टम उस मेमोरी के साथ क्या है, अटैच है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस का चीज है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में माइंड उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। दैट मीन्स द चॉइसेस वी मेक नाउ आर ऑफन अफेक्टेड बाय बट वी हैव बीन थ्रू बिफोर। मतलब जो भी हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे चॉइस लेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस कर रखा है। बट हियर इज द पावरफुल पार्ट। हो'oponopono का पावरफुल पार्ट क्या है? इफ वी कैन अंडरस्टैंड एंड चेंज समथिंग फ्रॉम पास्ट, अगर हम पास्ट में से कोई भी एक बिलीफ सिस्टम को या किसी हैबिट को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, या अभी तक जिन्होंने परफॉर्म किया है उन्होंने किसी चीज में चेंज लेके आया है, इट मीन्स दे कैन चेंज मोर थिंग्स इन द लाइफ हो'oponopono की हेल्प से। या अगर आपने कोई एक बिलीफ सिस्टम को या हैबिट को या किसी मेमोरी को चेंज किया है, इट मीन्स क्या, आप अपनी बाकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट पे जी रहे हो। एंड इसका नेक्स्ट हो जाता है, दिस मीन अंडरस्टैंडिंग दैट वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सभी जितने हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? फिजिकल लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे। बिकॉज एवरी वन इज द पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। सभी के पास सोल है, सभी की सोल सेम पार्टिकल से बनी है। तो एनर्जी लेवल पे क्या है, सारे लोग कनेक्टेड हैं। एंड कुछ कुछ बड़ा है जिसने पूरी क्रिएशन को संभाल के रखा हुआ है। अर्थ को संभाल के रखा है, सन को संभाल के रखा है, मून को संभाल के रखा है, डिफरेंट प्लेनेट है उनको संभाल के रखा है। तो वो कौन सी पावर है जिसने हर चीज को संभाल के रखा है? वो सेम पावर है जो हमारे अंदर है और आउटर वर्ल्ड में है। अगर हम यूनिवर्स को देखें या अपनी गैलेक्सी को देखें, तो वो हमें क्या दिखता है, एक ऊर्जा का गोला दिखता है। अगर गैलेक्सी को थोड़ा स्मॉल साइज में करके देखें तो क्या हुआ, एक गोला है। किस चीज का है? डिफरेंट एनर्जी पार्टिकल्स का। तो हम भी क्या हुए, सेम एनर्जी का एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है। बट अभी हम लोगों को क्या लग रहा है कि लाइक हमारी हमारी सिचुएशन बहुत बड़ी है, पर वो बहुत बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी सी है। सिर्फ अंडरस्टैंड करके उसको चेंज करना है कि कैसे इस चीज को माइंड से निकाला जाए, कैसे इस चीज को हील किया जाए। वो चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, वो सारी चीजें कैसे उस चीज को फिक्स किया जाए। बिकॉज ऑफ दैट, जब हम खुद को कनेक्ट करेंगे अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने हायर कनेक्शन के साथ, तो क्या होगा, जितनी भी ओवर थिंकिंग है या जितनी भी चीजों को कंट्रोल करने की हमारी आदत होती है, उस चीज में हम क्या करेंगे, लेट गो कर देंगे। हम सोचेंगे नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्रिएशन बहुत बड़ा काम कर रही है। जिसने हर चीज को संभाल के रखा है, वो हमें नहीं संभालेगी क्या? अभी तक संभाला है, हमारी एज जितनी भी निकली है, अभी तक हम वेल एंड गुड हैं। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी हमारी सराउंडिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास हैं, तो हम इनको क्यों इग्नोर करें? हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी हर एक चीज के लिए। राइट। तो हमें ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को लेके। अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो भी वेल एंड गुड है, अगर कोई नहीं मिल रही है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारे लिए क्या रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। एक सेकंड में चैट चेक कर लूं। पीडीएफ इसका मैं शेयर करूंगी, बट लाइक अभी नहीं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही। राइट। और रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी।
बट कुछ टाइम होल्ड करना पड़ेगा, मैं कंप्लीट करूंगी उसके बाद ही मैं रिकॉर्डिंग्स शेयर करूंगी, एंड वो रिकॉर्डिंग्स पेड जाएंगी एक्चुअली, वो मैं कोर्स ये क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है सीधे, ऑल वी नीड टू डू इज गो स्ट्रेट टू द क्रिएटर, एंजल, गुरु, गाइड, और आस्क फॉर द हेल्प टू क्लियर और फिक्स द प्रॉब्लम, थॉट और मेमोरी। हमें खुद कोशिश नहीं करनी है कि मैं हील करूंगा, ठीक है। अगर हम हील करने वाले होते तो अभी तक अपनी लाइफ को हम कंप्लीटली हील कर चुके होते हैं। हमें अगर हेल्प चाहिए तो हमें किसके पास जाना चाहिए, जो हमसे हायर इस पे बैठे हैं। वो कौन है? क्रिएटर है, या तो आप एंजल में बिलीव करते हो, या आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके मेंटोर गाइड हो सकते हैं, जिनको आप आस बोल सकते हो कि हमारी इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए, हमारे इस थॉट को फिक्स किया जाए, या हमारी इस मेमोरी को फिक्स किया जाए। क्यों? क्योंकि ये हमें परेशान कर रही है बार बार, है ना। सर्कल बार बार रिपीट होता है, कुछ लोगों के लाइफ में 6 मंथ में सर्कल रिपीट हो जा रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में साल 2 साल में रिपीट हो जाता है, कुछ लोगों के लाइफ में 5-6 साल के बाद रिपीट हो जाता है। अगर ये सर्कल एक्सटेंड हो जाता है 12 ईयर्स तक, तो वो सबसे हाईयर स्टेट है। 12 साल तक अगर कोई किसी के लाइफ में कोई एक्टिविटी सेम रिपीट नहीं हो रही है, तो वो सबसे हाईयर सेल्फ पे होता है। बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उनकी लाइफ में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल में पैटर्न बार 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 रिपीट होते चलते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि वो चीज क्यों आ रही है उनकी लाइफ में। और जैसे ही हम अप्रोच करेंगे क्रिएटर को, या गाइड को, या गुरु को, तो हमें एक ट्रस्ट उसमें बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सरेंडर करना भी सीख रहे हैं, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब क्या है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पे अपने हायर सेल्फ को दे रहा हूँ। उसका काम है वो हील करना। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उसी ने ही आपको इस चीज के बारे में अवेयर करवाया। बट नाउ यू डोंट नो द पाथ, कि आपको इस पाथ पे कैसे चलना है। तो जो आपकी सोल है, वो ऐसा तो है नहीं कि इसी लाइफ में आपको मिली है, वो आपके पास बहुत पहले से है आपकी सोल, ठीक है। आपको बॉडी नया मिला है, बट सोल का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। तो उसने क्या किया है, उसने ऑलरेडी बहुत, उसके पास मेमोरीज होंगी आपके पास्ट लाइफ में। आपने हो सकता है काफी साधनाएं की हो, जो जिनकी वजह से आप अपनी अर्ली स्टेज में इन चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों की पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप लोग अर्ली एज में कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे आपका जो कर्मा था, उसने आपको हेल्प किया है ग्रो करने में नेक्स्ट स्टेप के लिए। और जब आप अपना ट्रस्ट पुट कर दोगे क्रिएटर में, और क्या आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपकी जो हीलिंग है वो हायर लेवल पे हो रही है, और जो चेंज है वो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है। इमेजिन दैट थिंग कि हाँ, आपकी जो हीलिंग है वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर को दे दी है, और जो चेंज आपको चाहिए, जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो होना स्टार्ट हो गया है। अब उसका रिजल्ट आप कभी एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे को सेम रिजल्ट चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग, यूनिवर्स कभी भी रिजल्ट देगा वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। वो काफी चीजों को कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट्स देता है। ओनली द डिवाइन, द गॉड, द क्रिएटर और लव हैज द पावर टू डू दिस। कोई भी चीज अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, वो पावर सिर्फ किसके हाथ में है? या तो भगवान के हाथ में है, या क्रिएटर के हाथ में, मान लो। ये लव जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल तो नहीं मैं बोलूंगी, ये सबसे बड़ी पावरफुल, यू नो सबसे बड़ी पावर है पूरे वर्ल्ड की। अगर प्यार नहीं होगा ना इंसानों की जिंदगी में, या किसी भी जीव की जिंदगी में, कॉन्शियस लाइफ के अंदर, तो क्या होगा? फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े, ऐसे ही लोग लड़के मर जाएंगे। बट सभी के अंदर प्यार है। इसी करके क्या है, प्यार एक ऐसा तत्व है जो हर इंसान के अंदर है, हर जीव के अंदर है। हर प्रकृति के जितने भी स्पीसीज हैं, सभी के अंदर प्यार अवेलेबल है। तो हम उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि पावर सिर्फ उसी के पास है चेंज करने की। The divine knows who we really are, and understand the memories we keep repeating in our minds. देखो, आपके माइंड में क्या मेमोरी रिपीट हो रही है मैं नहीं जान सकती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में क्या मेमोरी रिपीट हो रही है हम खुद नहीं जानते, कि हम क्या क्या बार बार सोच रहे हैं, किस चीज को लेके सोच रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता है। बट जो हायर सेल्फ है वो जानता है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, और हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो किस बात को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा कनेक्ट करो डिवाइन के साथ, ग्रेटर ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट करो, जो बड़े लेवल पे सारी चीजें देख रही है। एंड और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं है,
ठीक है, या किसी के बिलीफ सिस्टम पे इसमें हमें आर्गू नहीं करना है। हर किसी का क्योंकि अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम है अपने अपने रिलीजन को लेके। बट उससे ऊपर ये क्या है, ये लेट गो करने का प्रोसेस है। ये हमें सिखाता है कि बेटर कैसे करें। क्योंकि किसी भी रिलीजन का कोई भी पर्सन होगा, हर इंसान अच्छा फील करना चाहता है। हर इंसान अपनी बुरी चीजों को लेट गो करना चाहता है। तो ये प्रोसेस किस चीज का है, ये लेट गो करने का प्रोसेस है। वो ओपोनोपोनो लेट गो करने का, क्लिनसिंग का और लिबरेशन का ही प्रोसेस है। और इसमें आपको क्या करना है कि एक तो हम 15 से 20 मिनट का डेली आपको टाइम निकालना है इसको परफॉर्म करने के लिए। एक काम माइंड होना चाहिए, काम एंड ओपन माइंड होना चाहिए। लाइक रिसीविंग के लिए हम फुली ओपन होने चाहिए। हमें रेजिस्टेंस नहीं डालना है कि हाँ ये चीज नहीं हो सकती या ये चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें ओपन हो जाना है। हमने अपना परफॉर्म किया, आगे यूनिवर्स के हाथों में कि उसे वो चीज किस तरीके से हमारे तक पहुंचानी है और कब पहुंचानी है। हम टाइम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सिंपली परफॉर्म करना है हो अपोनो को। गॉट इट। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इनको भी कवर करूं। वैसे तो जितना भी टॉपिक्स था ये डिस्कस कर लिया है हमने। तो फिलहाल अभी के लिए मैं से स्किप कर रही हूँ। इतना सभी को क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। एनीवन वांट टू No, आस्क? dear, no questions. Everything, I think you've explained it very well. थैंक यू, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ यू डू इट। इसको करें कैसे। सबसे पहले तो एक ऐसा लोकेशन देखो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल काम लोकेशन होना चाहिए। आपके रूम में हो सकता है, आपके घर की बालकनी में हो सकता है, कहीं पे भी आप जहाँ पे कंफर्टेबल होते हो, जहाँ पे आपको कोई 15 से 20 मिनट के लिए मिनिमम डिस्टर्ब ना करे। और इसमें आप दिया या इंसेंस जो है वो लाइट कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल चीज है। दिया इसलिए लाइट करने के लिए कहा जाता है कि मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, क्योंकि हमारे शरीर के 5 तत्वों का एक पार्ट है। ठीक है, जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, और पृथ्वी, ये हमारे 5 तत्व हैं। उनमें से एक तत्व कौन सा है, फायर एलिमेंट। तो दिया जब हम लाइट करेंगे तो फायर एलिमेंट क्या होगा, उस चीज का साक्षी होगा कि हम ये चीज परफॉर्म कर रहे हैं। और नहीं भी करेंगे तब भी एयर हो गया, अर्थ हो गया, ये क्या है, ये भी तत्व है, ये भी साक्षी हो रहे हैं उस चीज के। बट फायर क्या करता है, फायर बर्न करता है हमारी नेगेटिविटी को। तो यू कैन लाइट द दिया एज वेल इफ यू वांट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो कुछ एक डीप ब्रीथ्स लिए जाए। इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। मिनिमम 5 to 7 ब्रीथ्स आपको डीप लेने हैं। और जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आपका जो स्टमक है, जो पेट है, वो बाहर की तरफ आना चाहिए। और जैसे ही ब्रीद आउट कर रहे हो तो वो अंदर की तरफ वापस स्ट्रेच होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखी जाए, ठीक है। ब्रीदिंग का पैटर्न होता है जो फॉलो करना होता है। और कोई भी कंसीडर कीजिए आप प्रॉब्लम जो आपको बार बार परेशान कर रही है, नीचे खींच रही है, ठीक है, आपको ग्रो नहीं करने दे रही है। फ्रॉम ए डिफिकल्ट बॉस हु इज बॉदरिंग यू टू अ कलीग हु टुक योर अवे योर प्रमोशन। लाइक एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। ये कोई आपका एक्स हो सकता है जिसने आपको चीट कर दिया, या कोई आपने सामान परचेज किया मार्केट में, उसने किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, महंगा दे दिया, तो भी हमें एंगर आ जाता है। कुछ टाइम के लिए हम सोचते रहते हैं, उसी चीज को रिपीट कर रहे होते हैं, और हाँ अनकॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को बिलीफ बना रहे हैं अपना एक। ठीक है, तो वो चीज एबीसीडी कुछ भी हो सकती है। कोई भी सिचुएशन अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट पे परेशान कर रही है, उस सिचुएशन को कंसीडर कीजिए, उस इंसान को कंसीडर कीजिए, और एनर्जी लेवल पे खुद को और उसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जब आप आंखें बंद करोगे तो क्या होगा, आप एक सोल का स्ट्रक्चर देख सकते हो ना, एक एनर्जी का स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आप खुद का फेस नहीं देख पा रहे हो तो एक एनर्जी का बॉल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम सामने आप सामने वाले पर्सन को भी एक एनर्जी के बॉल के रूप में देखिए और एक कॉर्ड कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए इसमें, अपने इमोशंस को चेकआउट कीजिए फिर, कि उस इंसान के लिए आपके अंदर कौन से इमोशन आ रहे हैं। क्या वो अच्छे वाले हैं या वो बुरे वाले हैं। ठीक है, जैसे भी होंगे उनको कंसीडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं मैं इसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा। अगर वो आ रहे हैं, इट मीन्स वो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ पे स्टोर है, डीप इनसाइड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे कोई इंटरेक्शन हुआ किसी के साथ, मिसबिहेव हो गया, 1 घंटे के लिए क्या होगा, हमारे माइंड में चलता रहेगा। आज तो ये टॉपिक हो गया, मेरी इस इंसान से बहस होगी,
या उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। हम उसको बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपने, होपोनोपोनो जब भी आप कंसीडर करो तो वो अपने आप के अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको फील करो कि वो कौन से इमोशन है। वो पेनफुल है तो भी इनको कंसीडर करो, अगर वो जॉयफुल है तो भी इनको कंसीडर करो। और क्या करो, जैसे ही वो थॉट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल माइंड में कि सामने वाले ने बदतमीजी किया, तो इंस्टेंट क्या करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने तो बदतमीजी कर दी, बट विचार कौन लेके आ रहा है बार बार उस चीज का? मैं लेके आ रहा हूँ ना। कहाँ लेके आ रहा हूँ? अपने माइंड में लेके आ रहा हूँ, जिसको मेरे को क्लीन करना है। उसमें मैंने कोई नेगेटिविटी स्टोर नहीं करनी है। तो हमने इंस्टेंट उसी विचार को क्या किया, क्लीन किया। किसके साथ? होपोनोपोनो के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। विचार को हील कर दिया यहाँ पे। और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको परफॉर्म करो, पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर पर्सन के साथ। और ये 4 सेंटेंसेस आप रिपीट करते रहो जब तक आप सेटिस्फाई फील ना करो या आप काम फील ना करो। ठीक है, तब तक आपको इसको परफॉर्म करते रहना है। अगर आपके पास सेम पर्सन का फोटो है तो वो भी आप सामने रख सकते हो, आंखें खोल के आप उस चीज को कर सकते हो। बट आंखें बंद करने के लिए भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारी आंखें ओपन है तो हमारा जो माइंड है वो काफी चीजों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। हमारे सामने बहुत सारी पिक्चर्स चली होती है, कोई क्रॉस कर रहा हो सकता है ना। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं खुली आंखों के सामने। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है अलग अलग चीजों में। तो आंखें जब आप बंद करोगे तो वो सिर्फ आप विचारों को ही देखोगे, बाहर जो एक्टिविटी चल रही है उसको आप नहीं देखोगे। तो इस करके आंखें क्लोज करनी भी लाइक हेल्पफुल होती है, अगर आप कर सकते हो वो। तो 15 से 30 मिनट का आप इसको रिपीट करो। एंड द नेक्स्ट इज होपोनो पोनो मूव्स बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम। ये कैसे, किसके बाहर काम कर रही है? जो हम टाइम कंसीडर करते हैं या स्पेस कंसीडर करते हैं, इसके बियॉन्ड काम कर रही है। और एक वंडरफुल एनर्जी क्रिएट कर रही है जिससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो हमें ट्रस्ट करना है अपनी टेक्निक पे। अगर हम होपोनोपोनो कर रहे हैं तो हमारा तो पहले इसमें 101% जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए कि लाइक मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर लूंगा, या ये सिचुएशन मेरे लाइफ से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस सिचुएशन को हील करते रहना है कंटिन्यूअसली, ताकि वो सेम दोबारा सिचुएशन, ये सेम वैसे इंडिविजुअल लोग आपके लाइफ में बार बार इंटरेक्ट ना करें जो आपकी पीस को, आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आपकी पीस और आपका माइंड जो है वो आपके हाथों में है। अगर हमारे सराउंडिंग में लोग नेगेटिव हैं और वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनसे स्पेस क्रिएट करना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसमें ओपोनोपोनो परफॉर्म करेंगे तो यूनिवर्स अपनी एनर्जी लेवल पे अलग काम करेगा, वो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली हमसे दूर कर देगा। ठीक है, तो हमें जस्ट अपने एक्शन में बिलीव करना है, हमें यूनिवर्स में बिलीव करना है। और इसकी 4 इजी स्टेसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड एंड लव। ये 4 जो पावरफुल चीजें हैं ये हमें हेल्प करती हैं होओपोनोपोनो में। कौन से 4 इजी स्टेप हैं? दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले तो इनको अंडरस्टैंड करो कि हम आई एम सॉरी क्यों बोलते हैं, या प्लीज फॉरगिव मी क्यों बोल रहे हैं, या थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, आई लव यू क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा स्टेप है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज क्या? से आई एम सॉरी, यानी एक्सेप्टेंस करो। आप आई एम सॉरी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। वो मिस्टेक आपके एंड से हो सकता है, किसी और पर्सन के एंड से हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट पे। इसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है कि नहीं ये सिचुएशन निकल जाए, वो एकदम से तो वो निकलेगी नहीं। राइट, उसको हील करने में टाइम लगेगा, उसको पास आउट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कर्म अपना काम कर रहा है। अभी हम अनकॉन्शियसली एक्शंस ले रहे हैं चीजों में, तो वो तो अवेयर है कि हम अनकॉन्शियसली चीजें कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं। यूनिवर्स तो जानता है ये चीजें। तो अभी हमें कॉन्शियसली होके क्या करना है, उस चीज को एक्नॉलेज करना है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमें इस एरिया में हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो start by saying I'm sorry. This opened the door to healing, even if a problem seems like it is coming from the outside. The practice teaches us that our thoughts and memories inside us may be creating or attracting it.
क्या कहा जा रहा है कि आई एम सॉरी से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके डोर ओपन करेगा हील होने के लिए। और चाहे प्रॉब्लम आपकी आउटर वर्ल्ड से आ रही हो, ठीक है, बट इसमें ये प्रैक्टिस हमें क्या सिखाएगी कि कहीं ना कहीं से हमने ही इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है या अट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये आई एम सॉरी का जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको ये सिखाएगा। आप देखना, आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना किसी पर्सन को लेके, आप जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे नेक्स्ट टाइम, होपोनोपोनो परफॉर्म करोगे, तो आप देखो कि शुरुआत उस कॉन्फ्लिक्ट की कहाँ से स्टार्ट हुई है। क्या सिर्फ सामने वाले की गलती है या इक्वल पार्ट मेरा भी इन्वॉल्व है उस चीज में? अगर आपका इक्वल पार्ट इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? खुद को माफ करना तो बहुत इजी है ना। अगर हमारी गलती अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस चीज को हील करना और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आई एम सॉरी का जो पार्ट है वो आपको ये एक्नॉलेज करना सिखाएगा। थिंक अबाउट समथिंग यू आर स्ट्रगलिंग विद, मे बी इट्स योर हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, एंगर, एडिक्शन और फेलियर। देन से I'm sorry for the part of me that has created this. You may not have done it on purpose, but now you are ready to take responsibility and start healing. क्या कहा जा रहा है कि आप किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, आप उसको इमेजिन कीजिए। चाहे वो आपका हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो मनी का है, चाहे आपका एंगर है, चाहे आपके फेलियर्स हैं, कोई भी एबीसीडी पार्ट हो सकता है। तो आपके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसने उस चीज को क्रिएट किया या अट्रैक्ट किया? अवेयर नहीं है ना उस चीज के बारे में। तो एक्नॉलेज लेके क्या करो कि आई एम सॉरी फॉर द पार्ट ऑफ मी दैट हैज क्रिएटेड दिस, मतलब मैंने जो ये चीज क्रिएट की है मैं उस चीज के लिए अपोलोजेटिक हूँ। और ये हो सकता है कि आपने जो क्रिएशन की है या आपने पर्पसली नहीं की है, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हो सकता है कि मैंने पर्पस से नहीं की है किसी भी, बट वो चीज हो चुकी है। बट नाउ क्या हो रहा है, मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैंने ये चीज क्रिएट की है और मैं हीलिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। आई एम सॉरी क्यों करना है आपको? एक्नॉलेज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि हम हीलिंग का जो डोर है वो ओपन कर पाए। नाउ द सेकंड इज आस्क फॉर फॉरगिवनेस। से प्लीज फॉरगिव मी। नाउ दैट यू हैव सेड सॉरी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जस्ट से प्लीज फॉरगिव मी। You don't have to know exactly who or what you are asking. It could be your higher self, God, universe, or simply your own inner wisdom. Say it from the heart and really mean it. अब जब हम प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं, अब अक्नॉलेज हो चुका हमें, अब हम क्या करेंगे, उस चीज को रिपीट कर रहे हैं दोबारा, ताकि प्लीज फॉरगिव मी, कि हमें उस चीज के लिए क्षमा दी जाए। हम उस चीज को अनकॉन्शियसली हमने उसको अट्रैक्ट कर लिया है, वो मेरे से गलती हो गई है, मैं उस चीज के लिए क्षमा मांग रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये कंसिडर नहीं करना कि आप किससे क्षमा मांग रहे हो। वो आपकी हायर सेल्फ भी हो सकती है, लाइक आपके सोल हो सकता है, डिवाइन हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, क्योंकि हम कई बार भगवान से भी बहुत सारी कंप्लेन्स करते हैं, तो हमें वो भी नहीं करनी है। यूनिवर्स जो भी हमें दे रहा है वो बहुत सारी चीजें कंसीडर करके दे रहा होता है हमेशा। हमेशा हम जब भी खुद को देखें अबंडेंस में देखें, कभी गिल्ट में, रिग्रेट में, या खुद को लोअर वाइब्रेशन पे मत रखो। उससे क्या होगा, आप लोअर चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं, आप ऑलरेडी अबंडेंस में हो, आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो सभी को फ्रूटफुल मिल रही होती हैं। हम तो अपना अपना सोच रहे हैं, यूनिवर्स हर एक इंसान का सोच रहा है, हर एक इंडिविजुअल का सोच रहा है, तो वो कैसे किसी को गलत चीज दे सकता है? तो हमें कंप्लेन नहीं करना है किसी भी चीज को लेके। या आपके अंदर का जो बच्चा होता है, एक सोचो, आप छोटे होते कितने शरारती थे, कितनी एक्टिविटीज आप खुल के करते थे। अभी वो चीजें आपके अंदर है क्या? काफी चीजें आपकी, क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती है। फिर हमारे अंदर क्या होता है कि समय के अनुसार इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है, एक्टिविटीज बदल जाती है, हम हमेशा बच्चे नहीं रह सकते, हमें समझदार होना है। तो वो हमारा जो इनर चाइल्ड है हम उसको भी किल कर देते हैं बाहर के लोगों को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में, या मतलब बाहर जो हम हैप्पीनेस सीख करते हैं उसकी वजह से हम अपने इनर विस्डम को भी खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें वो चीजें नहीं करनी है, हमें खुद के साथ कनेक्ट करना है सबसे पहले तो, क्योंकि अगर हम खुद से कनेक्ट करेंगे तभी हम बाकी चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। बट हम पहले कोशिश करेंगे बाहर की चीजों को कनेक्ट करने की, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलना है, वो नहीं मिलेगा। और इसको दिल से बोलिए, प्लीज फॉरगिव मी को।
ये वाला पार्ट जो है, और इसको रियली मीन कीजिए, ठीक है। ये मतलब होना चाहिए कि नहीं, मैं सीख कर रहा हूँ, डेफिनेटली सीख कर रहा हूँ। द थर्ड इज लव। से आई लव यू। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग एनर्जी। से आई लव यू। से टू योर बॉडी, टू योर थॉट्स, टू द स्पेस अराउंड you, to the problem itself. This helps to soften the pain and send positive energy to whatever needs healing. Even saying it to your struggles will help heal them. जब आप बोलते हो आई लव यू, किसको बोलोगे? आप अपनी बॉडी को बोल सकते हो, आप अपने विचारों को बोल सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में जो स्पेस है उसको बोल सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है उसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एटलीस्ट अवेयर हुए हो उस चीज को लेके। कि अगर अवेयरनेस ही नहीं होती तो हील किस चीज को करते, है ना। कुछ लोग अपने सराउंडिंग की स्पेस को लाइक नहीं करते। वो सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा इससे बेटर स्पेस मिलता तो मैं अच्छा काम परफॉर्म कर पाता, या मेरे पास इससे बेटर फैसिलिटीज होती तो मैं उससे परफॉर्म कर पाता। बट होता क्या है, हमारे पास जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो सोर्सेज अवेलेबल है हम उनका यूज नहीं करते, उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और जो उससे हायर लेवल पे उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें फर्स्ट थिंग तो हमें जो हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट पे है उसको यूज करना आना चाहिए, और उसके साथ खुद को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है? उसको प्यार करके, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है ना। अब मैंने कुछ बढ़िया डिजाइन देख लिया किसी बोतल का, और मैं कंसिडर कर रही कि नहीं ये वाली अच्छी नहीं है, वो वाली अच्छी है। बट क्या कर रहा है एट द एंड? पानी तो दोनों पिला रही है ना, रिजल्ट दोनों सेम दे रही है। बट मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन में इसमें मैं नहीं डाल रही, मैं किसी और चीज में डाल रही हूँ। तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारा। सेम हम इंसानों को लेके भी करते हैं, सेम हम अपनी सराउंडिंग के स्पेस को लेके भी करते हैं, या सेम हम प्रॉब्लम्स को लेके भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाऊं, तब फिर मैं आगे कुछ मतलब माइंड का फोकस सही जगह पे ढाल पाऊंगा, ठीक है। बट वैसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, सभी को एक्सेप्ट करना है, सभी से फॉरगिवनेस सीख करनी है, और सभी से प्यार करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके पेन जो होगा ना उसको सॉफ्ट कर देगा, दर्द को कम कर देगा आपका, और जो पॉजिटिव एनर्जी है हीलिंग की वो इंक्रीज होगी। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज बी ग्रेटफुल। से थैंक यू। लास्ट में क्या करना है आपको? थैंक यू बोलना है। You are showing trust that your prayer or request has been heard, even if you don't see results right now. आपको क्या करना है? भरोसा रखना है अपना। किस चीज में? अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो इट मीन्स आप कर्म कर रहे हो। अब कर्म का तो सभी को खेल पता है कि आपने जो किया है वो आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है उस चीज का। तो अगर आप बोल रहे हो कुछ, आप सोच रहे हो या कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा ना। वो अब आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, बट रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली मिलना है, ठीक है। तो आप भी क्या कंसिडर करो कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो हर्ड हो चुकी हैं, सुन चुके हैं, सुन सुन लिया है हायर सेल्फ ने उस चीज को। और चाहे रिजल्ट्स हमें अभी नहीं मिल रहे हैं, बट क्या है, ऑन द वे है। रिजल्ट्स कहाँ है? ऑन द वे है। उसको ये मत बोलो कि मेरे को नहीं दिख रहे, या मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। ऐसे बोलो ऑन द वे है। तो ये क्या करेगा, आपके एक तो बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, और हील करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें सारी। The whole process is just four simple steps repeated with feeling. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Do it daily, calmly, and sincerely. And slowly you will feel lighter, clearer, and more peaceful. ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज इंटरेक्ट करते रहिए साथ साथ में, बीच में कुछ भी माइंड में आपके आ रहा है, या तो आप मतलब उस चीज में आप पूछ सकते हो। सेल्फ फॉरगिवनेस इज डिफिकल्ट, इजली फॉरगिव। नहीं मैम, जब तक अगर आप देखो खुद को हील नहीं खुद को नहीं माफ कर सकते ना शुभी, तब तक आप दूसरे को माफ कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब तक आप खुद को नहीं कर सकते माफ, तो आप किसी और को कैसे माफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहला तो अप्रोच कहीं कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बाहर का सब भूल जाओ, सब क्लियर आउट कर दो, कोई नहीं है आपके अलावा इस टाइम, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए? आप हो, ठीक है। तो खुद को पहले फॉरगिवनेस करना है। एनी क्वेश्चन?
अब देखो लाइफ के कौन कौन से एरिया हैं जिनमें हम वो अपन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, विद द सोल्स ऑफ दिस लाइफ एंड द पास्ट लाइफ। सबसे पहला है, अभी हम 6 पीपल कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट टाइम हम लोग में भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स ने हमें कहाँ से कनेक्ट कर दिया, कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, तो हम एक दूसरे को क्या करते आए होंगे, हेल्प आउट करते आए होंगे पास्ट लाइफ्स में भी। तो इस टाइम पे हम लोग क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। या हो सकता है कि आपको अभी जरूरत है किसी गाइडेंस की। ठीक है, या हो सकता है कि मैंने कुछ प्रोग्रेस करना है तो मेरे को उस चीज में आप लोगों की हेल्प चाहिए हो, है ना। मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल रीजन हो सकता है या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो जितनी भी सोर्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो किसी पब्लिक व्हीकल में, चाहे ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप गाड़ी में हो, उस टाइम पे जितने लोग अवेलेबल हैं उस टाइम पे आप क्यों उन्हीं लोगों के साथ उस व्हीकल में हो, क्यों इंटरेक्शन आपका उन्हीं के साथ हो रहा है उस टाइम पे। ये सवाल होना चाहिए ना। वही लोग क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। ठीक है, आप अपने स्कूल टाइम में जिन लोगों के साथ पढ़े हो, मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं पढ़ी, आप ही क्यों पढ़े हो। आप अपने कॉलेज की स्टडी आपने जिन लोगों के साथ की है, जो आपके फ्रेंड सर्कल के है, वही सोल्स आपके साथ क्यों कनेक्टेड है, वो मेरे साथ क्यों नहीं कनेक्टेड है, या वो शुभी के साथ क्यों नहीं कनेक्टेड है। अलग अलग लोगों के साथ क्यों नहीं कनेक्टेड हैं सभी, है ना। तो हर इंसान के लाइफ में जो लोग अलग अलग आते हैं, वो सारी क्या है, वो पास्ट कनेक्शन की सोल्स हैं। वो हमारी जो भी लोग आउटर आउटर वर्ल्ड में जितने भी हम लोगों से मिल रहे हैं, वो सब कर्मों का खेल है। अनकॉन्शियसली जो हमने चीजें एक्टिविटीज की हैं, तो वो सब उन चीजों का खेल चला होता है। सिर्फ एक इनर वर्ल्ड हमारा हमारे हाथ में है, जिसे हमें कंट्रोल, कंट्रोल तो नहीं मैं बोलूंगी, बट जिसे हमें सफाई करनी है उसकी अच्छे से, कि ताकि हम नेगेटिविटी को कंज्यूम ना करें बिल्कुल भी। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आने ही ना चाहिए। तो सोल्स के साथ हो सकता है कि, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया था कि 20 साल पहले जो आपकी लाइफ में थे लोग, क्या वो अभी भी आपके लाइफ में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे रिलेशन में खराबी आई होगी, या किसी न किसी सिचुएशन की वजह से हम लोग अलग हो गए। ठीक है, बट उस टाइम पे हमारी फीलिंग्स उस पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या थी, बहुत हायर थी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड थी 4th क्लास में, जिसका मेरे साथ बाद में इंटरेक्शन कम हो गया और उसकी नई फ्रेंड्स बन गई, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या फीलिंग्स आएंगी, कि ये अच्छी नहीं है, इसने मेरे को धोखा दे दिया। ठीक है, एक ह्यूमन नेचर बेसिक है ये। ठीक है, या इसको तो नया सर्कल मिल गया, और सेम फीलिंग्स हो सकता है वो भी मेरे लिए रख रही हो, है ना, क्योंकि दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन करके। तो उस केस में भी क्या हुआ, है वो बड़ी बात नहीं है, बट क्या हुआ, एक बिलीफ बन गया, एक मेमोरी बन गई। ठीक है, और जाने अनजाने में हमने एक दूसरे को क्या किया, तकलीफ दे दी। ठीक है, अब तो हम काफी फैसिलिटी के साथ हैं, काफी सारी चीजों के साथ हैं। आज से अगर हम 100 साल पहले लोगों को देखें तो किसी को माफ करने का, लाइक मतलब इंटरेक्शन करने का फोन पे, अभी तो फोन पे भी बात हो जाती है कि चलो यार ठीक है सॉरी। उस टाइम पे तो वो भी सोर्स नहीं था, मिले कहीं पे तो सॉरी बोला, नहीं मिले तो वो भी रह जाता था। तो जितनी भी सोल्स आपकी लाइफ में आपसे इंटरेक्ट कर रही है, चाहे आप उनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, उन सभी के साथ अपने कनेक्शंस को हील करना है। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, या तो वो हमें खुशी देते हैं या वो हमें हर्ट करते हैं, देन वो चले जाते हैं, और उसका क्या होता है, उसका एक छाप जो होती है वो हमारी लाइफ में रह जाती है। ठीक है, कि इंसान मिला था उसने अच्छा किया मेरे साथ, ये इंसान मिला था इसने बुरा किया मेरे साथ। तो जितनी भी सोल्स मिल रही हैं, एक्नॉलेजमेंट क्या है, मेरी ही अट्रैक्शन है या मेरी ही क्रिएशन है, तो हमें क्या करना है, उनके साथ खुद के कनेक्शन को हील करना है। सेकंड, हील विद श्री कृष्णा, शिवा, एनी गॉड यू फॉलो, और द डिवाइन पावर, जिसको भी आप मानते हो, चाहे वो यूनिवर्स ले लो, चाहे वो आप गॉड ले लो, चाहे वो श्री कृष्णा ले लो, चाहे वो शिवा ले लो, है ना, जिनको भी आप, जिनमें भी आपका बिलीव है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो इंस्टेंट हमारी ध्यान किसके ऊपर जाता है, भगवान के ऊपर जाता है, कि ये भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। ठीक है, बट हम ये भूल जाते हैं कि गॉड हमारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जिससे हमें तकलीफ हो। वो हमेशा हमें हील करने में हीलिंग एनर्जी देता है। ये हम ही हैं जो खुद खुद को तकलीफ दे रहे हैं, किसके द्वारा, अपने विचारों के द्वारा तकलीफ दे रहे हैं, अपने इमोशंस के द्वारा तकलीफ दे रहे हैं।
तो वो चीज हमें वो भी हील करनी है, हमें गॉड को ब्लेम नहीं करना है किसी भी चीज में, उनसे हमें हेल्प सीख करना है उल्टा। ठीक है। थर्ड वन इज फैमिली देती। फैमिली देती कौन होते हैं? आपके जैसे कुल देवता होते हैं। सुना है सभी ने कुल देवता, है ना? तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कल्चर जैसे बढ़ रहे हैं आगे, तो आज की जो जनरेशन है वो कम चीजों में, इन चीजों में कम बिलीव करना पसंद करती है। बट कहीं ना कहीं पे जिस चीज को, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अप्रिशिएशन मिल रहा है किसी से 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, ठीक है, और अचानक से मेरे को किसी ने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? मेरे अंदर भी एंगर इशू आ सकते हैं। ठीक है, मैं, मेरे हाथ में अगर कोई पावर होगी तो मैं उस चीज का रिजल्ट दे सकती हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर किसी भी चीज की पावर कब बढ़ती है, जब आप उसको कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट करते हैं। किसी भी एनर्जी की पावर तब बढ़ती है। ठीक है। या कोई रिचुअल है जो आप फॉलो करते आए थे, अब आपने, फॉर एग्जाम्पल देखो, देवी देवता या भगवान कभी आपसे मांगते नहीं है, वो देने के लिए है वहां पे, बट वो खाली एक अप्रिशिएशन ढूंढते हैं कि एटलीस्ट अप्रिशिएट तो किया जाए। देवी देवता है, वो भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो भगवान को नहीं फर्क पड़ता है, बट देवी देवता जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको पावर के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है। तो उनके साथ भी हम कर सकते हैं, कुछ रिचुअल्स नहीं हम कर पा रहे हैं, वो पोनो तो हम कर सकते हैं ना, कि हम आपके लिए कुछ नहीं एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द डिवाइन क्रिएटर एंड द मदर नेचर। मदर नेचर से हम पूरे दिन में कितनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, खाने पीने की चीजें ले रहे हैं। ठीक है, बट कॉन्शियसली हम लोगों ने कभी क्या अवेयर होके आ, उसको किया, ग्रेटफुल हुए मदर नेचर को? नहीं हुए। डिवाइन क्रिएटर ने हमें इतनी बड़ी क्रिएशन दी, उसने संभाल के रखा हुआ है, कभी ग्रेटफुल हुए? नहीं हुए। हमें किस चीज को हील करना है? हमारे रिलेशनशिप को, हमारे मनी को, हमारे हेल्थ को। बट जहाँ पे हमें ग्रेटफुल होना है वहां पे हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। जहां से मेन एनर्जी आनी है, जहां से क्लींजिंग आनी है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हीलिंग नहीं डाल रहे हैं अपनी। द नेक्स्ट इज विद फैमिली एंसेस्टर। हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन्होंने हमें कितना कुछ दिया होता है, लाइक प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती हैं वो हम अपने साथ तो लेके नहीं आए हैं। बेशक हमारे पूर्वज भी नहीं लेके आए थे, बट कहीं ना कहीं से वो हमारी अगली पीढ़ियों तक कहाँ से पहुंच रही है? पूर्वजों के द्वारा पहुंच रही है। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम लोग, जो हमारा जो बेसिक कल्चर है, जो, अगर आप देखो किसी एंसेस्टर को आप हीलिंग दे रहे हो ना, वो हो सकता है किसी नए जन्म में हो, बट आप उसको ब्लेसिंग्स भेज रहे हो। और अगर आप भेज रहे हो तो क्या, यूनिवर्सल न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो वो क्या होगी? ब्लेसिंग्स रिसीव भी तो होंगी। ठीक है। तो एंसेस्टर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, प्रॉपर्टीज उनकी है हमारे पास, पैसा उनका है हमारे पास। ठीक है। तो हमें ग्रेटफुल होना है उन चीजों के लिए भी, कि आप लोगों की वजह से हमें घर मिला है, आप लोगों की वजह से हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। या लाइक आप लोगों की वजह से हो सकता है कुछ एंसेस्टर ने कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट कर रखा है जो आज की डेट में हमसे क्रिएट करना पॉसिबल ना हो। ठीक है। तो मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है जो एंसेस्टर ने हमारे क्रिएट की हो सकती है, तो उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। नेक्स्ट इज फॉर गिविंग द सेल्फ। खुद को माफ करना। ठीक है, हमने अभी तक 5 पॉइंट कवर किया। ये 5 पॉइंट अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है? खुद को भी माफ करना जरूरी है, तभी तो हम बाकी चीजों को हील कर पाएंगे। ठीक है। और या हम अपने अंदर कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव गिल्ट या नेगेटिव फीलिंग कैरी करके चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को डिस्टरबेंस दे रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी हमें फॉरगिवनेस चाहिए। ठीक है। कोई डिसीज हो गया है, अब हमें क्या करना है? डिसीज को लेके परेशान नहीं होना है। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने कैंसर, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है। 2023 में मेरे को कंफर्म हुआ कि दैट आई हैव ब्रेस्ट कैंसर। बट मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मेरे को लाइक कैंसर हो गया। और मैंने कोशिश किया कि मैं जितने कम लोगों को ये चीज बता पाऊं, मैंने उतने कम लोगों को बताई। मोस्टली मेरी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था कि दैट मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है। जब मेरा प्रोसेस एंडिंग में था, तब जाके लोगों को खबर हुई, वो भी इस करके बिकॉज कीमो की वजह से मेरे हेयर्स मूव हो चुके थे, और गर्मियों का टाइम था, तो आई जस्ट, मतलब मैं आराम से उस चीज में निकलती थी। तो मैं उस चीज को हील कर पाई, या उस चीज में खुद को मतलब इतना ब्लेस्ड फील कर पाई, वो कैसे कर पाई?
क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली हीलिंग दे रही थी, मैं अपने थॉट्स को हीलिंग दे रही थी, मैं अपने बॉडी को हीलिंग दे रही थी, मैं अपनी सराउंडिंग को हीलिंग दे रही थी, मैं कहीं से कोई नेगेटिविटी कंज्यूम कर ही नहीं रही थी। क्योंकि अगर 10 लोगों को पता लगता है तो क्या होता है, सिंपैथी देने आ जाते हैं। अब सिंपैथी वो देंगे, वो अपने विचारों के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग देंगे, और वो विचार उसका कौन सा इंसान के कौन से माइंड में बैठ जाए वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम अट्रैक्शन डाल देते हैं उन चीजों में। तो इससे बेटर है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव फीलिंग अपनी किसी के साथ शेयर मत करो, कभी भी मत करो। वो कहाँ से आ रही है फीलिंग, अंदर से आ रही है ना, उसको अंदर ही खत्म करो, उसको बाहर मत निकालो। बाहर निकालोगे, यूनिवर्स कैच करेगा, सिचुएशंस आएंगी, लोग वैसे मिलेंगे, एनर्जीज वैसी आपको मिलेंगी। तो उस चीज को कंप्लीटली आप क्या करो, इग्नोर कर दो इन सब चीजों को। नेक्स्ट, आपका कोई फोबिया हो सकता है, कोई फियर हो सकता है। ठीक है, कोई भी फोबिया हो सकता है, किसी भी चीज को, अंधेरे को लेकर डर लगता लग जाता है लोगों को, या कोई सिचुएशन अभी नहीं आई है उसको लेकर डर रहे हैं। ठीक है, सोच सोच के ही डर रहे हैं। तो वो भी क्या है, आपका हीलिंग का एक पार्ट है। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, मनी को लेके जो ब्लॉकेज होती है, वो ब्लॉकेज क्यों आ रही है, उसके बारे में भी ये चीज आपकी होगी। रिलेशनशिप, जिसमें हमारे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स या कोवर्कर्स, ये सारे हैं। तो ये सारे एरियाज हम कवर करेंगे, और मैं इनसे रिलेटेड प्रेयर्स भी आपको दूंगी, जो अगर आप पर्टिकुलर किसी फील्ड में यूज करना चाह रहे हो तो उसमें आप वो कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। राइट नाउ अभी 11 बज गए हैं, तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। और बट उससे पहले अगर आप चाहते हो तो हम एक हीलिंग प्रेयर परफॉर्म कर सकते हैं विद द सोल्स ऑफ दिस लाइफ एंड द पास्ट लाइफ। राइट, एवरीवन इज ओके? ओके, सो just close your eyes and sit in a comfortable position. Take some couple of deep breaths. Inhale from the nose and exhale from the mouth. Inhale from the nose and exhale from the mouth. I'm sorry. Please forgive me. I seek forgiveness from the souls of this life and the past lives whom I have harmed knowingly, unknowingly. I also forgive the souls of this life and the past lives who have harmed me knowingly, unknowingly. I seek forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative energy, emotion, memories, vibration, and the blockages, and transmute all the unwanted energy into pure light. I love you. I thank you. Thank you, Divine, for all I have. Thank you, Universe. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I seek forgiveness from the souls of this life and the past lives whom I have harmed knowingly, unknowingly. I also forgive the souls of this life and the past lives
who have harmed me, knowingly, unknowingly. I seek forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative energy, emotion, memories, vibration, and the blockages, and transmute all the unwanted energy into pure light. I love you. I thank you. Thank you, Divine, for all I have. Thank you, Universe. Thank you. One more time, we will repeat. I'm sorry. Please forgive me. I seek forgiveness from the souls of this life and the past lives whom I have harmed, knowingly, unknowingly. I also forgive the souls of this life and the past lives who have harmed me, knowingly, unknowingly. I seek forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative energy, emotion, memories, vibration, and the blockages, and transmute all the unwanted energy into pure light. I love you. I thank you. Thank you, Divine, for all I have. Thank you, Universe. Thank you. Now gently rub your hands and put them on your face and gently open your eyes. So thank you, everyone. Thank you, dear. Thank you so much. So कुछ शेयर करना चाहोगे आप, लाइक कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस था सेशन में? बहुत अच्छा फील किया मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके, थैंक यू। क्लियर हुआ, काफी पॉइंट्स क्लियर हुआ मैम। थैंक यू। इसमें अभी हम काफी इसमें टिप्स हैं जो भी हम देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि क्यों हम बार बार सेम मिस्टेक्स जो है वो रिपीट कर देते हैं, क्यों हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीजों को, या हमें ऐसा लगता है कि ये परेशानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओके मैम। अट्रैक्शन हम लोग डाल रहे होंगे। ठीक है, तो हमें बस वही उसी चीज पे ध्यान रखना है कि हम वो जो हम लोग अट्रैक्शन अपना उसमें डाल रहे हैं वो हम कम डालें। ओके, थैंक यू ज्योति, थैंक यू शुभी, एंड थैंक यू ज्योति रावत एज वेल। इसमें एक क्वेश्चन डेली सेम पूछा था टाइमिंग किसी मैम? ने एक्चुअली, हाउ कैन वी डू सेल्फ वैलिडेशन एंड स्टॉप वेटिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स बाय डूइंग oponopono। देखो, वैलिडेशन चाहिए क्यों ज्योति हमें किसी से? लाइक हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई हमें बताए कि आप कैसे हो, आप क्यों ऐसे हो, आपको कैसे होना चाहिए, आपको क्या चाहिए वैलिडेशन लाइफ में किसी से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम किसी और से वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड करेंगे हम चीजों को, खाली हमें ऑब्जर्व करना है। अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि आपको सेल्फ वैलिडेशन चाहिए किसी से, तो सबसे पहले तो उस थॉट को बाहर निकालो। आपको नहीं चाहिए किसी से सेल्फ वैलिडेशन। आप अपने आप में एक पावरफुल सोल हो, अपने आप में एक कॉन्शियस सोल हो कंप्लीटली।
तो उसमें आप किसी और से वैलिडेशन लेना बंद करो, एक्सपेक्टेशन ही मत रखो इस चीज की कि आपको वैलिडेशन चाहिए। उसमें उसी थॉट को उसी टाइम पे हील करो। जैसे वो विचार आ रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या प्रेजेंट मोमेंट पे वापस आ जाओ, अपनी ब्रीथ पे फोकस करो। उससे क्या होगा, प्रेजेंट मोमेंट पे देखो, हम लोग कई बार कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टडी कर रही हो सकती हूँ, या मैं खाना खा रही हो सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रही हो सकती हूँ, या एबीसीडी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, बट हमारा अनकॉन्शियसली माइंड कहाँ है, 50 चीजों में चला हुआ है, ठीक है। तो जब भी कुछ लगे आपको कि ये नेगेटिव विचार है, या नेगेटिव फीलिंग है, या मैं यहाँ पे किसी और से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद के लिए अच्छा फील करना, तो उस फीलिंग को इमीडिएट चेंज करो। आपको नहीं है किसी सेकंड पर्सन की उस चीज में रिक्वायरमेंट कि कोई आपको वैलिडेशन दे। मैंने कोर्स आप लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है, तो मैं किसी से वैलिडिटी, उस चीज की वैलिडेशन थोड़ी मांगूंगी कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज मैं फील कर रही हूँ तो मेरे को करना चाहिए, जिसको रिसीव करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। वो चीजें मेरे कंट्रोल में तो होंगी नहीं ना कभी। तो आउटर सिचुएशन, आउटर पर्सन का जो भी डेफिनेशन आप उनसे वैलिडेशन या कुछ भी आप उनसे रिसीव करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, लीव इट। खुद को जॉयफुल बनाओ, खुद को ग्रेटफुल बनाओ। हैप्पीनेस, पीसफुल, मिरेकल्स हर जगह से आएंगे, ट्रस्ट में। लाइक मैं 3 इयर्स से फॉलो कर रही हूँ अपोनो को, और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इस चीज में। एंड थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइमिंग पे। सो हम नेक्स्ट टिप्स को हम डिटेल में और समझ पाए कि हो अपोनो कैसे हमें हील करेगा, ठीक है। अभी के लिए जो आप पर्टिकुलर हीलिंग कर रहे हो वो आप कंटिन्यूस कीजिए, बट उसमें एडिशंस क्या करनी है वो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आप उसमें वो चीजें ऐड करते चलो, टिप्स ऐड करते चलो। जो पर्टिकुलर टिप्स आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए रिक्वायर्ड है, उसको करो। और क्लीनिंग के लिए अगर स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो, बहुत हेल्प करती है स्ट्रॉबेरीज हमें हमारे विचारों को क्लीन करने में, हीलिंग को हीलिंग करवाने में या क्लीनिंग करने में स्ट्रॉबेरीज हेल्प करती है। तो ईट स्ट्रॉबेरी एज वेल, ठीक है। ओके मैन, एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे सभी को, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, गुड नाइट।